Good morning, students. I welcome you all for today's session. I hope you all are doing good. Okay, students, now before we begin today's session, let me quickly do a recap of your last session. In the last session, if you all remember, we did your writing task. In the writing task, we did notice writing and we did grammar, and in grammar, we did pronouns. Okay, now in today's session, again, you can see there are going to be two videos. Video 1, I'm going to be explaining you the chapter, and today we are going to be doing the chapter Unit 2, Section C, Conquering Mount Everest. Okay, so conquering means to climb, to be there, to be the first one to be there on Mount Everest. Okay, so it's a very interesting chapter. It's an adventure based chapter. It's about 2 to 3 people who are trying to climb the Mount Everest. Okay, so yes, students. So now let's begin with the today's explanation. I would like all of you to be ready with your books and open up on page 35. Okay, students. So let's start. So as you can see, which of these do you think are adventure sports? Circle your choices and give reasons for them. Okay, so students, in today's chapter you have an activity. I'll talk about the activity later on, and it is something related to these kind of adventure sports only. Okay, so let's begin. Now Aditya was excited about the research he had done for homework project. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered and he wanted to quiz his classmates. सो चैप्टर शुरू होता है स्टूडेंट्स आदित्य से. आदित्य एक स्टूडेंट है और उसने अपने होमवर्क के लिए काफ़ी रिसर्च किया था. उसका होमवर्क प्रोजेक्ट जो था वो था माउंटेन क्लाइंबिंग के ऊपर. ओके, एंड उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई थी कि वो अपनी क्लासमेट्स को उसके बारे में क्विज़ की तरह क्वेश्चंस पूछना चाहता था. सो सी, टेल मी सेल्विन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन एवरेस्ट? क्विज्ड आदित्य नेक्स्ट मॉर्निंग. सो यस, आदित्य सेल्विन से पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि सबसे पहले फ़ोटोग्राफ किसकी, सबसे पहले आदमी कौन सा था जिसकी फ़ोटोग्राफ खींची गई थी माउंट एवरेस्ट पे. सो ही इज़ गिविंग द आंसर. एडमंड हिलरी, ऑफ कोर्स, was Selvin's quick answer. Oh, you lose a point there. It was Tenzing Norgay. Hillary and Norgay were the only two people at the peak, and Tenzing didn't know how to use the camera. So Hillary took Norgay's picture. So yes, see, अब सेल्विन ने आंसर दिया है एडमंड हिलरी, बट यहाँ पे आदित्य उसको बोल रहा है नो, तुम्हारा आंसर गलत है, तुमने एक पॉइंट मिस किया है. एक्चुअली जो सबसे पहले पहुँचने वाला था वो तेंजिंग नॉर्गे था. हिलरी के साथ तेंजिंग भी था. तेंजिंग को कैमरा चलाना नहीं आता था, इसलिए हिलरी ने तेंजिंग की फ़ोटो खींची थी. On 29th May 1953 at 11:30 a.m., Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals. So let's turn over to the next page, students. Yes, became the first people to reach the summit of the highest mountain on earth, Mount Everest. And let us read more about one half of this famous pair, Tenzing Norgay. सो येस, यहाँ पे समिट का मतलब होता है हाईएस्ट पीक. सो ये 29 मई की बात है जिस दिन ये दोनों अपने हाईएस्ट पीक पे पहुँच गए थे ऑन अर्थ, वो है माउंट एवरेस्ट. सो अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट तेंजिंग नॉर्गे. तेंजिंग नॉर्गे वॉज बॉर्न इन 1914 इन तिब्बत. ही लेटर मूव्ड टू नेपाल एंड लिव्ड विद शेरपास. सो सी, ही वॉज बॉर्न, वो तिब्बत में बॉर्न हुए थे मगर वो नेपाल चले गए थे एंड उन्होंने शेरपास के साथ रहना शुरू कर दिया. शेरपास स्टूडेंट इज़ अ कैटेगरी ऑफ पीपल. इट्स आई वुड से अ स्मॉल ट्राइब इन नेपाल. ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया. द शेरपास हु हैड मूव फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल 100 of years ago had lived in the mountains for many years. Not far from Tenzing's new adopted village
सो अडॉप्टेड का मतलब होता है न्यू विलेज, ठीक है। राइजेस द मेजेस्टिक एवरेस्ट, मेजेस्टिक का यहाँ पे मतलब होता है स्टूडेंट्स वेरी ह्यूज, वेरी ग्रैंड, ओके, एट द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। सो अब तेंजिंग ने जहाँ पे अब रहना शुरू कर दिया था वो था माउंट एवरेस्ट के, वो एक छोटा सा गांव था जो माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पास था, ओके। सो यस, माउंटेनियर्स on climbing expedition, mountaineers are the people who climb, who do mountain climbing. Expedition का मतलब होता है adventurous journey. So yes, so जो mountain climbing वाले लोग हैं जब वो एक adventurous journey पे जाते हैं तो वो hire करते हैं शेरपास को to carry supplies and to show them the way to up to the mountains. So शेरपास की ये खासियत है क्योंकि वो माउंटेन्स में रहने वाले होते हैं तो उनको पता होता है माउंटेन्स के बारे में, उनको वहाँ के रास्तों के बारे में पता होता है। ओइंग टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन हाई माउंटेन्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है माउंटेन्स में रहने का, द शेरपास हैव प्रूव्ड टू बी एक्सेलेंट गाइड्स एंड माउंटेनियर्स, इसलिए शेरपास को माना गया है कि वो बहुत एक्सेलेंट गाइड्स हैं टू क्लाइम दी माउंटेन। एट द एज ऑफ 18 Tenzing moved to Darjeeling and in what is known as West Bengal now. We hoped to make his fortune carrying, he hoped to make his fortune carrying loads of supplies of mountaineering expedition. So Tenzing ने ये सोचा हुआ था कि वो पैसे make his fortune का मतलब है to earn money, कि वो पैसे कैसे कमाएंगे, वो लोगों के लोड्स, जो लोगों का सामान है वो उठा के जब भी वो किसी अपनी एडवेंचर जर्नी पे जाएंगे तो लोगों की हेल्प करेंगे और वैसे वो पैसे कमा लेंगे। मगर क्या होता है आगे, 3 years later he accompanied a survey team on an expedition to Mount Everest as a porter. So 3 साल बाद उन्होंने एक ग्रुप को अकम्पनी किया, मीन्स एक ग्रुप को ज्वाइन किया, उनके साथ गए जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहते थे एज अ पॉटर। नाउ स्टूडेंट्स, पॉटर यहाँ पे वो लोग होते हैं जो लोगों का सामान उठाते हैं इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स। सो यहाँ पे भी उनका मीनिंग सेम है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टेंजिंग हैड टेकन पार्ट इन मोर माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशंस देन एनी अदर क्लाइंबर। Working with so many different people, Tenzing learned to speak 7 languages. Later he became a sirdar. Sirdar means the head or an organizer of porters. He continued to guide expeditions to Everest and inspired many mountaineers. So इस तरह से Tenzing ने अपना ये प्रोफेशन ही बना लिया था। Tenzing इतनी बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुके थे कि उन्होंने इतने लोगों को गाइड कर चुके थे कि उन्होंने 7 लैंग्वेजेस सीख ली थी उनको गाइड करते करते, एंड देन वो हेड भी बन गए थे सारे पॉटर्स के, और उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर मीन्स एनकरेज किया, गाइड किया काफ़ी सारे माउंटेनियर्स को। ड्यूरिंग देयर हिस्टोरिक क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953 एडमंड हिलरी लॉस्ट हिज फुटिंग एंड नियरली डाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब तेंजिंग ने एडमंड हिलरी के साथ जा रहे थे उनकी क्लाइंब के बाद, उनकी माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए इन 1953, तब क्या हुआ था, एडमंड हिलरी का लॉस्ट हिज फुटिंग का मतलब होता है कि उनका पैर फिसल गया था एंड ही वॉज अबाउट टू डाई। बट क्या हुआ, तेंजिंग डिड नॉट पैनिक, तेंजिंग बिल्कुल भी घबराए नहीं। ही हेल्ड द रोप लाइन टाइटली एंड प्लांटेड हिज एक्स फर्मली इनटू द आइस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्विक एक्शन लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे देखो उनका कितना ज़्यादा था। उन्होंने फटाफट से रोप को, रस्सी को बहुत कस के पकड़ा एंड उन्होंने अपनी एक्स कुल्हाड़ी को लेके, कुल्हाड़ी की मदद से कुल्हाड़ी को बहुत ज़ोर से आइस में गाड़ दिया, जिसकी वजह से वो मतलब अपने आप को होल्ड कर पाए। लेटर ही सिंपली सेड, माउंटेन क्लाइंबर्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर। ठीक है, सो सी हाउ स्वीटली ही इज़ गिविंग द आंसर। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, माउंटेन क्लाइंबर्स की तो ये एक रूल है कि वो एक दूसरे की मदद उनको करनी चाहिए। फॉर हिज करेज एंड हीरोइज्म
and for being one of the first people to scale Mount Everest. Tenzing was awarded the British George Cross and the Star of Nepal. So उनको अवार्ड किया गया था, ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस एंड स्टार ऑफ नेपाल कहा गया था. नाउ अब आदित्य एक और क्वेश्चन पूछ रहा है. Here's my next question, said Aditya. Do you know which award has been established in Tenzing Norgay's honor by Government of India? Well, can you tell him the answer? So आदित्य ने पूछा सेल्विन से कि मुझे बताओ कि कौन सा अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था तेंजिंग नॉर्गे के ऑनर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया था. ओके, सो हमने उनको आंसर ढूंढ के देना है. So students, I have the answer ready for you. That is in there in one of your question answer also. So the answer is Tenzing Norgay National Adventure Award. So it is TNNAA. Okay, TNNAA. That's Tenzing Norgay National Adventure Awards. So please remember this. Okay students, so it was a very short chapter. I hope you all enjoyed. You can search more about this. Now these are the word meanings. You have to note it down in your copies, and the question answers also. I'll be sending you the file. It will have that. So yes students, now let me quickly discuss about the activity. Activity is that you can see there are list of some sports, okay, challenging sports. So there are 6 of them. Now what your activity is, you will choose any 2 sports and you will write 2 sentences about that sport. Okay, after writing 2 sentences, you will also find out the sports person involved in it. Okay, for example, अगर आप चूज़ करते हो विंड सर्फिंग, सो विंड सर्फिंग के बारे में आप 2 सेंटेंसेस लिखोगे कि विंड सर्फिंग कहाँ की जाती है, लैंड में होती है, एयर में होती है कि वाटर में होती है. ओके, एंड यू विल राइट कि ये कहाँ पे स्पोर्ट की जाती है एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट और द टूल्स नीडेड. क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, बोट चाहिए होती है या रोप्स चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड. ओके, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव टू वेयर. एंड एट द सेम टाइम आप 2 सेंटेंस लिखोगे उस स्पोर्ट के बारे में, दैट इज़ लैंड, वाटर और एयर, एंड द सेकेंड लाइन विल बी कि क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे विंड सर्फिंग का सबसे पहला स्पोर्ट्स पर्सन कौन था, किस कंट्री का था वो, व्हाट इज़ हिज नेम, विच कंट्री, एंड फ्रॉम व्हाट एज डिड ही बिगिन द स्पोर्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, so this is your activity and you have to do it in your copy only. Okay, so after you finish writing your question answers, then at the end you will write down this activity. And I'm also showing you the back exercise. It is solved, so you will be solving this back exercise on your books itself. Okay, it is on page number 38, 39, and then on page number 40 there is nothing. Then page number 41 students, again there is one activity. This is related to your video 2. Okay, so now I would like you all to take a short break and join me again for your second video. And in the second video we are going to talk about your writing section in formal letter. Okay,